Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th social science history our past volume 2nd and chapter number 4. Alright students, chapter number 4 and video 2nd. Today we have to start from video 2nd, page number 49. And students, this is chapter 4. Alright, chapter 4 and the chapter is the Mughal Empire. Okay, chapter 4, the Mughal Empire, video 2nd. Alright, so let's start. Jahangir 1605 to 1627. Military campaign started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaigns against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar followed. Okay. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. Okay, जहांगीर 1605 से हम बात करते हैं. तो जहांगीर ने स्टूडेंट्स जहां मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू. ओके, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार. ओके, मेवार के जो सिसोदिया रूलर्स थे, सिसोदिया जो शासक थे, अमर सिंह, एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस. ठीक है, तो उन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया. Less successful campaigns against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar followed. Okay, less successful campaigns. इसके बाद उन्होंने सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए. Prince Khurram, the future emperor शाहजहां, rebelled in the last year of his reign. ठीक है, तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में जो राजकुमार खुर्रम थे, प्रिंस जो खुर्रम थे, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया. द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल. जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे. ओके, नाउ शाहजहां 1627 टू 1658. अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में. ओके, Mughal campaigns continue in the Deccan under Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi, okay, the Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and Orcha seized. In the northwest, the campaign to siege Balkh from Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. Okay, in 1657 to 1658, there was a conflict over succession amongst Shah Jahan's son. Okay, and Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Sukho, were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. Okay, so Shah Jahan 1627 to 1658. Okay, Mughal campaign continued to in the Deccan under Shah Jahan. Okay, the Afghan's noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे. अफगान अभिजीत खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह डिफीट हो गया और वह पराजित हो गया. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर. ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की, द बुंदेलोज वर डिफीटेड, जिसमें बुंदेलों की हार हुई. एंड ओरछा सीज्ड. ठीक है, और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया. इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, द कैंपेन टू सीज बल्ख फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविड्स. ठीक है, और स्टूडेंट्स परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया. ठीक है, in 1632
Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. ओके 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए, पीस के लिए निवेदन किया. ओके फिर 1657 से 1658 में देयर वर कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन. ठीक है 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए. ठीक है इससे क्या हुआ, औरंगजेब वॉज विक्टोरियस और औरंगजेब की विजय हुई एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुको वर किल्ड और उसके दारा सिको समेत तीनों भाई को मौत के घाट उसने उतार दिया. शाहजहां वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी, ठीक है शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया. ओके अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में. औरंगजेब 1658 टू 1707. ठीक है अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में. ओके इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663. ओके but rebelled again in the 1680s. Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikh were temporarily successful. Mughals' intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajput of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. Okay. अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में स्टूडेंट्स. औरंगजेब 1658 टू 1707 इन द नॉर्थ ईस्ट. ओके उत्तर पूर्व में. ठीक है स्टूडेंट्स उत्तर पूर्व में द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663. उत्तर पूर्व में 1663 में अहोमों की पराजय हुई बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680s. लेकिन 1680 में उन्होंने फिर से रिबेल्ड कर दिया, फिर से विद्रोह कर दिया. कॉम्पेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिक्स वर टेम्परली सक्सेसफुल. इन द नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में. ठीक है उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता प्राप्त हुई, अस्थायी सफलता मिली. मुगल intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. ठीक है मारवाड़ के राठौर जो राजपूत थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और यही कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का इंटरवेंशन हुआ, हस्तक्षेप हुआ. ओके कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा कैप्टन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा. ओके तो मराठा जो सरदार थे, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया. ठीक है औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से एस्केप्ड हो गए, भाग गए. डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स. और उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए. ओके एंड प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास. ओके एंड द डेक्कन सल्तनत. ही फाइनली फ्ली टू द साफविद ईरान. ओके तो राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला. अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया. ओके नाउ सेकेंड
After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikh, Jat and Satnamis, in the northeast of the Ahoms, and in the Deccan of the Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his son. Okay. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. ओके, तो आफ्टर अकबर रिबेलियन, ठीक है, अकबर के विद्रोह के पश्चात, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी. ओके, बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687. और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया. From 1698, Aurangzeb personally managed a campaign in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Okay, और 1698 में 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया. ओके, Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikh, Jat and Satnamis. ठीक है, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, और इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ऑफ द अहोम्स, और उत्तर पूर्व में अहोमों, और इन द डेक्कन ऑफ द मराठाज, और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा. हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन. उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. ओके, तो मुगल ट्रेडिशन क्या था, मुगलों की क्या परंपरा थी सक्सेशन की, उत्तराधिकार की. तो हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं. ओके, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं. द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनियर. ओके, प्रीमोजेनिचर where the elder son, okay, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid customs of co-parency, inheritance of a division of the inheritance amongst of all the son. ठीक है, followed the highlighted passage in table 1 and note the evidence for the rebellions by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of the inheritance, primogeniture और कोपैरिसेनरी? ठीक है, तो अब हम इसके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी. द मुगल्स डिड नॉट बिलीव, ओके, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनियर. ठीक है, प्रीमोजेनियर होता है ज्येष्ठाधिकार का नियम. ठीक है, कि अगर किसी फैमिली में, राजा की फैमिली में जो 3 बेटे हैं, तो उसमें एल्डर जो सन है, एल्डेस्ट सन को ही विरासत मिलती है, एल्डेस्ट सन को ही उत्तराधिकार, उनकी गद्दी का प्राप्त होता है. ठीक है, तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है. ओके, इसके विपरीत इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टेमुरिड कस्टम्स ऑफ कोपैरिसेनरी. तो इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहृदयात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन किसमें कर दिया जाता था, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ऑल द सन. फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस. विच डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोजेनियर और कोपैरिसेनरी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों
को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर, एविडेंस पर गौर करिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायात, ठीक है, या सहदायात का तरीका बेस्ट था। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के संबंध अन्य शासकों के साथ, ठीक है, या मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन, फिर से टेबल 1 को देखिए। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स, ओके, who refused to accept their authority, but as the Mughal become powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajput are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high position, but many resisted as well. तो तालिका एक को आप फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी, बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉल्यूंटरीली, ठीक है, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार किया। राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राजपूत इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। राजपूत क्या है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऑलराइट, अनेकों ने, ओके, मैनी ऑफ देम married their daughters into Mughal families and received a high position, but many resisted as well. राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, परंतु अनेकों लोगों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए और कईयों ने तो इसको रेसिस्टेड कर दिया, विरोध इसका कर दिया। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, मुग़ल मैरिजेज विद द राजपूत, राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ। तो कैसे होती थी राजपूत के साथ मुग़लों की शादियाँ? द मदर ऑफ द जहांगीर वॉच अ कछवाहा, ठीक है, वॉज द कछवा, ओके, कछवाहा, द मदर ऑफ जहांगीर वॉच कछवाहा princess, daughter of the Rajput ruler of Amber, modern day Jaipur. The mother of Shahjahan was a Rathore princess, daughter of the Rajput ruler of Marwar, okay, Marwar, Jodhpur. द मदर ऑफ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो कि वर्तमान में जयपुर है, अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है। एंड द मदर ऑफ शाहजहां, और शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो कि मारवाड़ के राजपूत शासक की, मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की क्या थी, पुत्री थी। ऑलराइट, now next page students, the Sisodia Rajput of Mewar, okay, the Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time, okay, for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands, Watan, back as assignments, Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influences over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note the Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। तो द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुग़ल ऑथोरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे, इन्होंने लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से मना किया, इनकार किया। वंस डिफीटेड, हावेवर, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ओके, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया तथा उन्हें उनकी जागीर, जागीर मतलब वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ओके, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंसेस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस। ठीक है, पराजित करने पर, परंतु, ओके, पराजित करने
परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेकों शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन यह कठिन था कि हर बार वो उस संतुलन को बनाए रखें। लुक एट टेबल 1 अगेन, फिर से आप टेबल 1 को देखिए। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही कम टू एक्सेप्ट मुगल ऑथोरिटी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट? ओके, तो अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स, तालिका 1 को टेबल 1 को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि जब शिवाजी ने मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए, ठीक है, जब शिवाजी मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट्स, मनसबदार एंड जागीरदार। अब हम पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार के बारे में। एज द empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. Okay, तो स्टूडेंट्स, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे जैसे साम्राज्य टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, तो वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों को, ठीक है, सामाजिक समूहों को सदस्यों के प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। मतलब जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र, ओके, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के, ठीक है, तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। ओके, From a small nucleus of Turkish nobles, Turanis, they expanded to include Iranians, Indian, Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Okay, और स्टूडेंट शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। Those who joined Mughal service were enrolled एज मनसबदार, और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, जो मुगलों की सेवा में आने वाले जितने भी नौकरशाह थे उनको मनसबदार कहलाया जाने लगा, उनको मनसबदार कहा गया। ओके, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, meaning a position or rank. It was a grading system used by the Mughals to fix one rank to salary and third military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called jad. The higher the jad, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. Okay, the term mansabdar refers, mansabdar शब्द का अर्थ है ऐसे प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था, ठीक है, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी मीनिंग अ पोजीशन और रैंक यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, ओके, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, वेतन एवं थर्ड सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है, किसकी संख्या पर निर्भर था? जात की संख्या पर निर्भर था। द हायर द जाट, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। ओके, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ओके, द मनसबदार military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary.
द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो सैन्य, ऑलराइट, जो भी सैन्य उत्तरदायी तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार वहाँ पर कैवलरी मैन यानी घुड़सवार व्यक्ति रखे जाते थे। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, और मनसबदार अपने सवारों को, अपने घुड़सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। गॉट देम रजिस्टर, और अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण रजिस्टर करवाते थे। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और इस कार्यवाही के बाद ही, ये सारी कार्यवाही के बाद ही उन्हें उन सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ओके, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू assignments called jagirs, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants while ओके, तो जो मनसबदार थे, मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। मनसबदार अपना वेतन राजस्व, ठीक है, अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में प्राप्त करते थे, जिसे जागीर कहा जाता था। विच वॉज समवट लाइक इक्तास, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। बट अनलाइक मुक्तीज, लेकिन वे मुक्तीज जैसी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो मुक्ति से वे कैसी थी, जागीर की जैसी तो थी, लेकिन वे इक्ता की तरह भी थी, लेकिन मुक्ति के जैसे वे नहीं थी, मुक्ति से वे भिन्न थी। एंड मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, ठीक है, और अपने जागीरों पर वे नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशासन करते थे। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर दैम बाय देयर सर्वेंट्स, ओके, और उनके पास अपनी जागीरों से केवल, ठीक है, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके लिए उनके नौकर एकत्रित करते थे, ठीक है, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। while the mansabdars themselves, okay, while the mansabdars themselves served in some other parts of the country, okay, और जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवा करते थे, ठीक है, सेवारत रहते थे। इन अकबर्स राजे their jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar, okay, by Aurangzeb, okay, by Aurangzeb, by Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir, okay, while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously, okay. In Akbar's reign, their jagirs were carefully, अकबर के राजिन मीन्स शासनकाल, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का वर्करफुली एसेस्ड, ओके, इन जागीरों का सावधानी पूर्वक क्या किया जाता था, इनका आकलन किया जाता था, सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। बाय औरंगजेब राजिन, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में दिस वॉच नो लॉन्गर the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum, ठीक है। और स्टूडेंट्स औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई, ओके,
मनसबदार की संख्याओं में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और मनसबदार की संख्या क्या हो गई, लगातार बढ़ने लगी। विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ओके, these and other, all right, these and other factors created a shortage in the number of जागीर। ओके, और उन्हें इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होने लगी। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व, जितना कर वसूल कर सकें कर ले। औरंगजेब was unable to control these developments in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ठीक है, इस कारण जो किसान थे, ठीक है, जो पीजेंट्री थे, इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का, ट्रिमेंडसली सफर्ड, अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जब्त एंड जमींदार। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जब्त और जमींदार के बारे में।